ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਹ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਬਰ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਆਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। 31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30, 32 ਜਾਂ 35 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 125 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਤੋਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਤੇ ਸਟੈਲਿਨ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਠੱਗ ਚੋਰ ਦਾ ਟੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਫਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕਰੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ अंकल आंटी भी। सर तो कैसे हैं आप? अंकल से आपकी बात हुई होगी, उनका फिर फ़ोन आया था अभी कि मुझे रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए आप। मुझे फ़ोन आया था कि आप भी बोल दो शबीर पाजी को कि वो रिपोर्ट्स भिजवा दें, कि वो बोल रहे थे 16 तक आएगी उसके बाद मैं दे दूंगा। वो बोल रहे हैं कि 16 से पहले की जो आई हुई है वो ही रिपोर्ट्स भिजवा दें, बाकी उसके बाद वाली जो आएगी 16 को वो 16 को अलग से भेज देंगे। बोल रहे थे हमें अर्जेंट चाहिए, तो बोल रहे थे कि हर रोज़ लारा लप्पा ही चल रहा है, तो हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, तो अगर रिपोर्ट्स भिजवा दें 16 को जो आनी है वो तो 16 से पहले जो आई हुई है वो भेज दें हमें। 16 को जब आएगी उसके बाद फिर वो भिजवा देंगे 16 को। बाकी अंकल बता रहे थे कि पहली किस्त तो शायद आप डाल ही रहे हैं कल 10 करोड़ की। कैसे हैं सर? मुझे अभी फिर फ़ोन आया कि हमें आप रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे रहे, क्या दिक्कत क्या है रिपोर्ट्स देने में? इतने टाइम से तरले मिन्नतें कर रहे हैं। तो मैंने बोला है कि बस एक बार मैं रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ अभी। तो वो बोल रहे हैं कि दिक्कत बता दो हमें क्या है रिपोर्ट्स देने में, मुझे क्लियर कर दो बंटी, तुम भी मेरा पागल बना रहे हो। मैंने बोला है कि मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर मेरे पास सर आंसर ही नहीं है कोई कि क्यों नहीं दे पा रहे, मैं बता ही नहीं पा रहा उन्हें। मुझे स्ट्रेस हो जाती है जब भी कॉल आती है। हम इतने बार गुस्से होके प्यार से रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स मांग ली हैं, आप रिपोर्ट्स ही नहीं मांग रहे हो, दे रहे हो हमें। तो फीवर वो चल रहा है, तो मैं बोल रहे हैं कि इतने महीनों से हम इतने बार गुस्से होके प्यार से रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स मांग ली हैं, आप रिपोर्ट्स ही नहीं मांग रहे हो, दे रहे हो हमें। सर तो कैसे हैं आप? अंकल से आपकी बात हुई होगी, उनका फिर फ़ोन आया था अभी कि मुझे रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए आप। मुझे फ़ोन आया था कि आप भी बोल दो शबीर पाजी को कि वो रिपोर्ट्स भिजवा दें, कि वो बोल रहे थे 16 तक आएगी उसके बाद मैं दे दूंगा। वो बोल रहे हैं कि 16 से पहले की जो आई हुई है वो ही रिपोर्ट्स भिजवा दें, बाकी उसके बाद वाली जो आएगी 16 को वो 16 को अलग से भेज देंगे। बोल रहे थे हमें अर्जेंट चाहिए, तो बोल रहे थे कि हर रोज़ लारा लप्पा ही चल रहा है, तो हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, तो अगर रिपोर्ट्स भिजवा दें 16 को जो आनी है वो तो 16 से पहले जो आई हुई है वो भेज दें हमें। 16 को जब आएगी उसके बाद फिर वो भिजवा देंगे 16 को। बाकी अंकल बता रहे थे कि पहली किस्त तो शायद आप डाल ही रहे हैं कल 10 करोड़ की। कैसे हैं सर? मुझे अभी फिर फ़ोन आया कि हमें आप रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे रहे, क्या दिक्कत क्या है रिपोर्ट्स देने में? इतने टाइम से तरले मिन्नतें कर रहे हैं। तो मैंने बोला है कि बस एक बार मैं रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ अभी। तो वो बोल रहे हैं कि दिक्कत बता दो हमें क्या है रिपोर्ट्स देने में, मुझे क्लियर कर दो बंटी, तुम भी मेरा पागल बना रहे हो। मैंने बोला है कि मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर मेरे पास सर आंसर ही नहीं है कोई कि क्यों नहीं दे पा रहे, मैं बता ही नहीं पा रहा उन्हें। मुझे स्ट्रेस हो जाती है जब भी कॉल आती है।
हम इतने बार गुस्से होके प्यार से रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स मांग ली हैं, आप रिपोर्ट्स ही नहीं मांग रहे हो, दे रहे हो हमें। तो फीवर वो चल रहा है तो मैं बोल रहे हैं कि इतने महीनों से हम इतने बार गुस्से होके प्यार से रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स मांग ली हैं, आप रिपोर्ट्स ही नहीं मांग रहे हो, दे रहे हो हमें। सर तो कैसे हैं आप? अंकल से आपकी बात हुई होगी, उनका फिर फ़ोन आया था अभी कि मुझे रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए आप। मुझे फ़ोन आया था कि आप भी बोल दो शबीर पाजी को कि वो रिपोर्ट्स भिजवा दें, कि वो बोल रहे थे 16 तक आएगी, उसके बाद मैं दे दूंगा। वो बोल रहे हैं कि 16 से पहले की जो आई हुई है वो ही रिपोर्ट्स भिजवा दें, बाकी उसके बाद वाली जो आएगी 16 को, वो 16 को अलग से भेज देंगे। बोल रहे थे हमें अर्जेंट चाहिए, तो बोल रहे थे कि हर रोज़ लारा लप्पा ही चल रहा है, तो हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, तो अगर रिपोर्ट्स भिजवा दें 16 को जो आनी है, वो तो 16 से पहले जो आई हुई है वो भेज दें हमें, 16 को जब आएगी उसके बाद फिर वो भिजवा देंगे 16 को। बाकी वो अंकल बता रहे थे कि पहली किस्त तो शायद आप डाल ही रहे हैं कल 10 करोड़ की। कैसे हैं सर? मुझे अभी फिर फ़ोन आया कि हमें आप रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे रहे, क्या दिक्कत क्या है रिपोर्ट्स देने में, इतने टाइम से तरले मिन्नतें कर रहे हैं। तो मैंने बोला है कि बस एक बार मैं रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ अभी। तो वो बोल रहे हैं कि दिक्कत बता दो हमें क्या है रिपोर्ट्स देने में, मुझे क्लियर कर दो बंटी, तुम भी मेरा पागल बना रहे हो। मैंने बोला है कि मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर मेरे पास सर आंसर ही नहीं है कोई कि क्यों नहीं दे पा रहे, मैं बता ही नहीं पा रहा उन्हें। मुझे स्ट्रेस हो जाती है जब भी कॉल आती है। हम इतने बार गुस्से होके प्यार से रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स मांग ली हैं, आप रिपोर्ट्स ही नहीं मांग रहे हो, दे रहे हो हमें। तो फीवर वो चल रहा है तो मैं बोल रहे हैं कि इतने महीनों से हम इतने बार गुस्से होके प्यार से रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स मांग ली हैं, आप रिपोर्ट्स ही नहीं मांग रहे हो, दे रहे हो हमें।